شکر گزار ہیں ایک بار پھر اپنے خداوند کے جو ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بچاتا ہے، چھڑاتا ہے، رہائی دیتا ہے، مہیا کرتا ہے، اور بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں ہمیں، کیونکہ ہمارا خدا الفا اور اومیگا ہے، ابتدا اور انتہا ہے، اول اور آخر ہے۔ اور جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں خدا کی جو پریزنس ہے نہ صرف اس کے تعلق سے پروفز ملتے ہیں بلکہ کلام مقدس ڈکلیئر کرتا ہے کہ خدا ہے۔ آمین۔ اور مجھے یقیناً یاد ہے کہ کچھ جو ہے ہفتوں پہلے ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی اسی تعلق سے کہ خدا کا وجود جو ہے اس کو بائبل مقدس پروو نہیں کرتی، اس کے بارے میں وہ اعلان کرتی ہے۔ آمین۔ اور آج جو باتیں خدا کے تعلق سے اور انسان کے ایک رسپانس کے تعلق سے ہم سیکھیں گے، آپ سب جو ہے وہ زبور 19 میرے ساتھ نکال لیجئے، اور آج ہم اس میں سے جو ہے وہ کچھ باتیں جو ہے مختصر وقت میں جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جب ہم خدا کے تعلق سے پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ آمین۔ اور دوسری بات جو آپ کو ہمیشہ، جو خاص طور پر ایماندار ہیں، جو مسیح یسوع میں آنے کے وسیلہ سے خدا کے فرزند ٹھہرے ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، خدا ہمیشہ سے ایک رسپانس مانگتا ہے۔ خدا انسان سے کسی چیز کی توقع نہیں کرتا سوائے ایک چیز کے، وہ رسپانس ہے، کہ آپ اس کی جو صفات ہیں، جو اس نے برکات آپ کو دی ہیں، آپ اس کو رسپونڈ کیسے کرتے ہو۔ اور جب آپ زبور 19 کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں جو ہے وہ جنرل ریویلیشن کے تعلق سے سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور ایک اسپیشل ریویلیشن بھی اس کے بارے میں بھی سیکھنے کو ملتا ہے۔ دو طرح کے مکاشفے ہیں، ایک خاص اور ایک عام مکاشفہ۔ عام مکاشفہ اس کا مطلب ہے جنرل ریویلیشن۔ اس کے معنی یہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا نے کل کائنات کے ذریعہ سے اپنے آپ کو نسل انسانی پر ظاہر کیا ہے۔ یہ ہوا، یہ چرند، یہ پرند، یہ پہاڑ، یہ پودے، یہ خوبصورت سی کائنات، یہ ایک جنرل ریویلیشن ہے جو خدا کی ایگزسٹنس کو پروو کرتا ہے۔ اور ایک اور کہ خدا نے ہمارے باطن میں، کیونکہ جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پیدائش کی کتاب میں یہی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اس نے اپنی صورت اور شبیہ پر ہمیں بنایا ہے۔ جو جنرل ریویلیشن ہے اس کا تعلق آپ کے ضمیر کے ساتھ بھی ہے۔ آپ کا ضمیر کہیں نہ کہیں یہ بولتا ہے، یہ چلاتا ہے کہ ایک خدا موجود ہے جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، اور وہ خدا نہ کبھی مرا ہے نہ کبھی مرے گا، وہ عبدالآباد زندہ ہے۔ ہیلیلویہ، there is a God۔ اور یہ جنرل ریویلیشن کے تعلق سے جو ہے وہ 19ویں باب کی پہلی 6 آیات جو ہیں وہ بیان کرتی ہے، ذرا پڑھیے گا۔ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ نہ بولنا ہے نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ان کا سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے۔ اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا ہے، جو دلہے کی مانند اپنے خلوت خانہ سے نکلتا ہے اور پہلوان کی طرح اپنی دوڑ میں دوڑنے کو خوش ہے۔ وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے اور اس کی کشت اس کے کناروں تک ہوتی ہے اور اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بس نہیں
होती है। हालेलुया। सो ये प्रूव करती है, वो कह रहा है पहली आयत में कि आसमान खुदा का जलाल जाहिर करती है। हालेलुया। और ज़मीन जो है वो उसकी दस्तकारी दिखाती है कि कैसे ये खूबसूरत कायनात जो है, ये ज़मीन को जो है वो बनाया गया है। पहाड़ हैं, समुंदर का पानी अलग है, समुंदर की जगह अलग है, तराई की अलग है, खुश्की की अलग है। हमें इमारतें नज़र आती हैं, हमें जंगलात नज़र आते हैं, पौधे नज़र आते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो हैं हमें फूल नज़र आते हैं। सो व्हाट डज दिस प्रूव? कि एक खुदा है कि जब हम इन पर निगाह करते हैं तो वो चीख चीख कर ये पुकारती हैं कि यस देयर इज़ अ गॉड हु क्रिएटेड मी। हालेलुया। और आसमान उसका जलाल जाहिर करता है और कहते हैं कि दिन से दिन बात करता है। खुदा ने दिन को जो है रात से वो जुदा किया, और यहाँ पर ज़बूर नवीस क्या कहता है कि दिन से दिन बात करता है। क्या बात करता है? वो मेरे हिसाब से तो मैं कमेंट्री पढ़ा था, वो कहता है कि वो शुक्रगुजारी करते हैं उस खुदा की जिसने उनको खल्क किया है। हालेलुया। तो दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलना है, ना कलाम, ना उनकी आवाज सुनाई देती। अब हमें तो नहीं ऑडिबल, बट यस दे आर स्पीकिंग टू ईच अदर अबाउट व्हाट? वो थैंक्स गिविंग कर रहे हैं, वो शुक्रगुजारी कर रहे हैं, उस खुदा की तारीफ कर रहे हैं जिसने आफताब को और महताब को बनाया है, जिसने सूरज को, चांद को और जो है सितारों को बनाया है, और जो ये निज़ाम हस्ती है उसको संभाले रखता है। उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं, उसके बारे में तारीफ़ कर रहे हैं कि खुदा जो है वो मौजूद है। और कहते हैं उनका सुर सारी ज़मीन पर, कुछ पोर्शन में नहीं है। सारी कायनात को, दुनिया को बनाने वाला कौन है? मेरा खुदा है, आपका खुदा है। हालेलुया। और उसकी एग्जिस्टेंस का जो सुर है, उसके मुकाशफे का जो सुर है, वो पूरी कायनात में है, और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचा है। हालेलुया। ये पूरी दुनिया जानती है कि यस देयर इज अ गॉड। आज एथियस्ट सवाल करते हैं, आज एथियस्ट जो हैं वो कहते हैं कि कोई खुदा नहीं, और हमें ज़बूरों में ही पता चलता है कि अहमक ने अपने दिल में कह दिया कि कोई खुदा नहीं है, there is no God। पर अभी हमें पता चला है कि दिन से दिन बात करती है, रात को जो है वो रात हिकमत सिखाता है, और उसकी एग्जिस्टेंस का जो सुर है, यानी एग्जिस्टेंस का पैगाम है, जब सुर लगाया जाता है, जो सुर होती है उसमें वॉइस होती है, उस वॉइस में एक मैसेज होता है, और वो मैसेज जो है वो पूरी दुनिया तक पहुंचता है। क्या? कि देयर इज वन ट्रू गॉड। हालेलुया। क्योंकि हमें क्रिएशन नजर आती है तो इसका मतलब ये है कि देयर इज अ क्रिएटर। हालेलुया। और फिर हमें पता चलता है आगे ज़बूर नवीस कहता है उसने आफ्ताब, अब यहाँ पर तीन जो मेन और यहाँ पर उसने मेटाफर्स यूज किए हैं, वो है आफ्ताब, दुल्हे और पहलवान। आफ्ताब जो है वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। सबसे बड़ा प्लेनेट हमें वो नजर आता है, सन। उसके गिर्द जो है वो घूम रहे होते हैं बाकी जो हैं प्लैनेट्स। इट मीन्स कि गॉड इज ग्रेटेस्ट देन ऑल। हालेलुया। उसके बाद दुल्हा, दुल्हा का मुकाम अलग होता है। जब शादी की जो है रस्मात अदा की जा रही होती हैं, इवेंट होता है, तो उसमें से जो सबसे रिस्पेक्टेबल और सबसे ऑनर्ड जो शख्स होता है वो कौन होता है? वो दुल्हा होता है। इट मीन्स दैट गॉड इज वर्दी टू बी गिवन रिस्पेक्ट। हालेलुया। हालेलुया। और आप जब मसीह यीशु में आते हैं तो आप तो उसकी दुल्हन है और वो आपका क्या है? हालेलुया। इट मीन्स जब आपका उसके साथ कनेक्शन है, यू आर गोइंग टू गिव रिस्पेक्ट टू ईच अदर। हालेलुया। वो आपको भी अजीज रखता है, वजह क्योंकि आप उसको अजीज रखते हैं। हालेलुया। कलाम में भी यही लिखा है। उसके बाद है पहलवान। पहलवान से मुराद क्या है? जोरावर। हालेलुया। और ये बात जाहिर करती है कि हमारा खुदा जो है वो कादिर है और जोरावर है। हालेलुया। ही इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, he is worthy to be respected
एंड ही इज द ऑलमाइटी गॉड, जो कि कुव्वत से भरा हुआ खुदावंद है, जो कि हमारे खिलाफ जो है जो भी हथियार बनाए जाते हैं उनको कैंसिल करता है और हमारी जगह वो जंग लड़ता है और हमें फतह से बढ़ के गलबा देता है। हालेलुया। और वो यही कहता है, वो आसमान की इंतहा से निकलता है। हालेलुया। बातें इसको मैं और ज़्यादा खोलता जाऊँ तो बहुत सी हो सकती हैं, जल्दी से जो है आगे आएंगे। अगली 7वीं आयत से लेकर हमें 11वीं आयत तक जो है हमें ये पता चलता है, वी गेट टू लर्न अबाउट द स्पेशल रेवलेशन। अभी हमने क्या बात की? अभी बात किया जनरल रेवलेशन की, आम मुकाशफा की बात की है, पर अब हम स्पेशल रेवलेशन के पास जाएंगे। याद रखें, जनरल रेवलेशन में खुदा अपने आप को इस क्रिएशन के थ्रू, जो उसने क्रिएट की है, उसके थ्रू अपने आप को जो है आप पर जाहिर करता है। पर स्पेशल रेवलेशन में जो है वो अपने आप को अपनी नेचर के बारे में, अपने एट्रीब्यूट्स के बारे में, अपने करैक्टर के बारे में पाक सहाइफ के थ्रू आपसे बात करता है। आज बहुत से लोग कहते हैं आज मुझसे खुदा बात नहीं करता। आज बहुत से लोग कहते हैं शायद मुझसे खुदा नाराज है इसलिए मुझसे बात नहीं करता है। नो ब्रदर्स, नो सिस्टर्स, खुदा आपसे 24/7 बात करता है, आप नहीं सुनते। उसने तो ऑलरेडी इन 66 किताबों में आपके लिए बहुत कुछ रख दिया है। दिस इज अ स्पेशल रेवलेशन। और वो क्या है, जरा पढ़ेंगे 7वीं आयत से 11वीं आयत तक। खुदावंद की शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है। वाह वाह वाह। खुदावंद की शहादत बरहक है, नादान को दानिश बख्शती है। खुदावंद के कवानीन रास्त हैं, वो दिल को फरहत पहुंचाते हैं। खुदावंद का हुक्म बेऐब है, वो आंखों को रोशन करता है। खुदावंद का खौफ पाक है, वो अबद तक कायम रहता है। हालेलुया। खुदावंद के एहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त हैं। वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज्यादा पसंदीदा है। प्रेज गॉड। शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से भी शीरी हैं। प्रेज गॉड। उनसे तेरे बंदे को आगाही मिलती है, उनको मानने का अजर बड़ा है। हालेलुया। अब यहाँ पर हमें खुदा का एक एट्रीब्यूट नजर आ रहा है और साथ ही साथ उसको मानने वाले का एक एप्लीकेशन नजर आती है। अब फर्स्ट वर्स जो है, जो जहां पर हमें स्पेशल रेवलेशन 7वीं आयत पढ़ें तो पता चलता है कि खुदावंद की शरीयत कामिल है। इट टेल्स अबाउट द स्क्रिप्चर कि शरीयत क्या है, एट्रीब्यूट क्या है कि ये कामिल है। एप्लीकेशन क्या है कि वो जान को बहाल करती है। हालेलुया। ये साइड बाय साइड पैरेलल चल रहे हैं। आई हैव स्टार्टेड दिस स्टडिंग क्योंकि मैंने BTH लेवल को जो है जो डॉक्ट्रिन ऑफ स्क्रिप्चर पढ़ानी है, तो जस्ट फॉर एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने इसको प्रिपेयर किया था कि हमें यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ स्क्रिप्चर मिल रही है। डॉक्ट्रिन ऑफ स्क्रिप्चर क्या है कि यू गेट टू सी, आपको जो है वो जनरल रेवलेशन के ताल्लुक से सीखने को मिलता है और स्पेशल रेवलेशन के बारे में सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप जब स्पेशल रेवलेशन जो कि आपको पाक सहाइफ के बारे में जो है आप में मिलते हैं इसमें, क्योंकि जब हम तिमोथी से खत पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल यही बताता है कि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, वो तरबियत, इल्जाम, रास्तबाजी में जो है वो हमें फायदा पहुंचाते हैं। हालेलुया। और इल्हाम का मतलब है जो खुदा ने अपने दम से जो है वो फूंका हो। दम का मतलब फूंकना, जो खुदा ने ब्रेथ आउट किया है। और इस वजह से वो ज़बूर नबी कहता है, एक एट्रीब्यूट देता है, क्या कहता है, खुदा की शरीयत कामिल है। हालेलुया। और साथ ही क्या कहता है, वो जान को बहाल करती है। उसके बाद खुदावंद की शहादत जो क्या है, बरहक। एट्रीब्यूट, एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन क्या है, वो नादान को, हालेलुया। अब एक एट्रीब्यूट है, एक एप्लीकेशन है, साइड बाय साइड पैरेलल। आगे क्या है देखेंगे जरा, खुदावंद के कवानीन। आगे क्या है, वो दिल को, फरहत का मतलब है जॉय। हालेलुया। खुदावंद के जो कवानीन हैं, जो वो आपको असूल बताता है, वो क्या है, वो रास्त है। वजह क्या है, वो क्यों रास्त है, खुदा ने बोलता है और खुदा खुद क्या है, खुदा रास्त है। हालेलुया। गॉड इज राइचियस। उसकी जो कवानीन है, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो भी राइचियस हैं, क्योंकि राइचियस जो है वो जो कलाम है उसको अदा करेगा। और इसलिए वो कहता है कि खुदावंद के कवानीन रास्त हैं और क्या बख्शते हैं। एप्लीकेशन क्या है, वो दिलों को जो है वो फरहत पहुंचाते हैं। फरहत से मुराद है
शादमानी पहुंचाते हैं, जॉय देते हैं, एंड द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। हालेलुया। खुदावंद की शादमानी हमारी क्या है? कुव्वत है। यकीनन जब खुदावंद हमसे बात करता है, अपने जो है वो बातें हमारे दिल में रखता है, वो हमारे दिल को शाद करती हैं, और जब दिल शाद होता है तो वो हमारी कुव्वत बन जाती है। हालेलुया। और आगे देखें, खुदावंद का हुक्म बेऐब, और साथ एप्लीकेशन क्या है? वो आंखों को, हालेलुया। अब देखिए कैसे सिस्टमैटिक वे में ज़बूर नवीस ने इसको खुदा के जो है वो इंस्पिरेशन के ताल्लुक से जो है वो लिखा है। इंस्पायर्ड वर्ड है और खुदा का कलाम वो उसने तहरीर किया। एक तरफ वो क्या दे रहा है? एट्रीब्यूट दे रहा है, एक तरफ क्या दे रहा है? एप्लीकेशन दे रहा है। मैं इसको ज़्यादा ओपन नहीं करना चाहता क्योंकि ऑलरेडी टाइम शॉर्ट है। आगे कहता है खुदावंद का खौफ पाक है, वो अब तक कायम रहेगा। हालेलुया। यकीनन जितने खुदा से डरते हैं, ये नहीं कि तुसी डर दे मारे होंदे हुजूर ही ना जाओ, नो। यहाँ पर जो मतलब है वो रेवरेंस है, ताजीमन, कि खुदा सबसे बड़ा है, खुदा हमारा हेड है, गॉड इज सुप्रीम। हालेलुया। खुदा आपसे मोहब्बत करता है, और ये क्या बताती है हमें? कि वो अब तक कायम रहता है। खुदावंद के अहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त हैं। और आगे कहता है वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज़्यादा पसंदीदा है। हालेलुया। कुंदन का मतलब है मोर देन जस्ट गोल्ड, या प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड, मतलब सिर्फ सोने के हद तक नहीं है, वो उससे भी ज़्यादा है। कलाम जो है सोने की एक चमक होती है, देखिए ना आपने चमक, जो मेरी बहनें बैठी, सोने की एक चमक भी होती है, लेकिन खुदा का कलाम उस चमक से कई ज़्यादा बढ़ गया है। हालेलुया। जो हमारी आंखों को रोशन कर देते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में वो रोशनी लेकर आती है, जो हमारी ज़िंदगी में उस चमक को लाती है। और आगे कहता है वो शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से भी ज़्यादा शीरी है। हालेलुया। खुदा का कलाम शहद से भी ज़्यादा मीठा है। हालेलुया। ये आपके दिलों को मिठास पहुंचाती है। जो जब मिठास जाती है तो कड़वाहट क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। भावें जिन्नी मर्जियाँ मिर्चियाँ लगे हों, भावें जितना मर्जी कड़वा खाना खाता हो, जब शहद आप खाते हैं तो वो आपके टेस्ट को जो है वो चेंज कर देते हैं। मिठास आपको वापस नॉर्मल जो है वो वे में आपको बना देती है, आप वापस आपको नॉर्मल लेवल पर ला देती है। इसी तरह खुदा का कलाम भी है। जब खुदा का कलाम जो कि शहद के टपकों से भी ज़्यादा शीरी हैं, जब आपके मुंह में डाला जाता है, जब आप उसको इनटेक करते हैं, तो जितनी कड़वाहट है वो बाहर आ जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, कड़वाहट मिठास में बदल जाती है। क्योंकि मसीह ने भी ये कहा कि हर आदमी जो अपने दिल के अच्छे ख़जाने से अच्छी बातें निकालता है, अगर दिल में बुरे हैं ख्यालात तो बुरे ही बाहर आएंगे। और खुदा का कलाम हमारे जो दिल के जो है सारे ख्यालात हैं, जो दिल में बातें हैं, उनको जो है वो शहद की मानंद मीठा बना देता है। फिर आप किसी को आवाज़ार करने के लिए बात नहीं करेंगे, बल्कि उसकी नसीहत करने के लिए, उसको इत्मीनान देने के लिए, उसको तसल्ली देने के लिए अपना मुंह खोलेंगे। और इसी तरह से कलाम ये भी फरमाता है कि जब भी तुम बोलो तो ऐसा बोलो जैसे खुदा का कलाम है। हालेलुया। और आगे अब हमें नज़र आता है 13वीं आयत से जो है 12वीं आयत से आगे जरा पढ़िएगा, 12वीं 13वीं और 14वीं जल्दी से पढ़ेंगे, फिर इसको हम क्लोज करेंगे। कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? तू मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर। तू अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से भी पाक रख। वो मुझ पर गालिब ना आए तो मैं कामिल हूँगा और बड़े गुनाह से बचा रहूँगा। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल है। ऐ खुदावंद, ऐ मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले। आमीन। So now he is giving a response to God। जब उसे पता चल गया है कि this is the special revelation, this is the general revelation, ये ख़ास मुकाशफा है, ये आम मुकाशफा है और खुदा मौजूद है। Now he is responding and respond में एक रिक्वेस्ट भी दे रहा है। रिक्वेस्ट क्या दे रहा है? कि कौन अपनी भूल चुकी को जान सकता है, कि कौन अपने एरर्स को जो है वो जानता है। ये बेसिकली एक रिटोरिकल क्वेश्चन है, इसको हम हर्मेन्यूटिक्स में सिखाते हैं। इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन। अगर कोई शख्स कहे मैं गधा हूं तो क्या इसका मतलब, इंसान कहे कि मैं गधा हूं, क्या वो गधा होता है? नो, इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन, इसको कहते हैं रिटोरिकल। तो कहता है
کہ کون اپنی بھول چک کو جان سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے, وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کوئی شخص اپنی بھول چک کو جانتا نہیں ہے. ہم بھول سے کوئی بھی کام کر دیتے ہیں, we forget it, پر خدا اسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے, now he is requesting کہ مجھے پتا ہے میں بھول جاتا ہوں, بھولے چوکے میں بہت سے عیب کر دیتا ہوں, پر تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر. آگے وہ یہ بھی کہتا ہے تو اپنے بندہ کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ. he is requesting, پہلے کیا کہہ رہا ہے, عیبوں سے پاک کر, بعد میں گناہوں سے باز رکھ, وہ مجھ پر غالب نہ آئے تو میں کامل ہوں گا. ہیلیلویا. مسیح نے بھی یہ کہا کامل بنو جیسا تمہارا بلانے والا کامل ہے. ہیلیلویا. اور پھر آگے کہتا ہے اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا. He knows کہ I cannot do. He knows وہ اپنے آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا. He is trusting the Lord, جس کو اس نے جو ہے وہ خاص مکاشفہ سے اور عام مکاشفہ سے جانا ہے, اس خدا سے وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ خداوند تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک رکھ, مجھے گناہوں سے باز رکھ تاکہ وہ مجھ پر غالب نہ آئیں. تو جب وہ غالب مجھ پر نہیں آئیں گے تو میں تیرے فضل, تیرے رحم کے وسیلہ سے, تیری پروٹیکشن کے وسیلہ سے, تیری پرووائڈنس کے وسیلہ سے میں کامل ہوں گا. اور آگے کہتا ہے میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور. وہ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے رسپونڈ کیا ہے وہ تیرے حضور مقبول ٹھہرے. اور آگے وہ کہتا ہے اے خداوند, آئے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے. ہیلیلویا. سو دیر از اے گاڈ جو کہ کریشن کے تھرو آپ سے بات کرتا ہے, جو کہ کلام کے تھرو آپ سے بات کرتا ہے. ہی از جسٹ ویٹنگ کہ کب آپ اپنی طاقتوں کو پیچھے رکھ کر اس کی الہی طاقت کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں, تاکہ جب وہ کام کرے گا تو آپ یقیناً جو ہے فتح سے بڑھ کے غلبہ حاصل کریں گے. وہ آپ کے لیے لڑے گا, وہ آپ کے لیے بھاگے گا, وہ آپ کو بچائے گا, اور یقیناً آپ کامل ہوتے جائیں گے مسیح میں. آلریڈی اپنے روحانی عالم میں آپ ویسے ہی ہیں جیسا مسیح ہے, اور خدا باپ جب آپ کو دیکھتا ہے تو آپ پر برے کے لہو کو جب دیکھتا ہے, اس کے بیٹے کے لہو کو دیکھتا ہے, اپنے بیٹے کے لہو کو دیکھتا ہے, تو وہ آپ کو بھی مسیحی کنسیڈر کرتا ہے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. آئے ہم سب دعا کریں کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے کریشن کے تھرو ہم سے بات کی, اور یہ کلام جو ہے وہ ہمارے پاس ہے.